आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो हु मस्ट रजिस्टर? ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट है। बिजनेस के लिए लिमिट है। गुड्स के सप्लायर है तो उनका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर जा रहा है तो फिर उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। एंड अगर सर्विस का बिजनेस सर्विस है तो उनको 20 लाख के ऊपर उनका टर्नओवर हो तो फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। There is special category for also special category states also कि that is अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल, जम्मू, कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। उसके लिए लिमिट अलग है। गुड सप्लायर है तो 20 लाख एंड सर्विस प्रोवाइडर है तो 10। तो ये लिमिट है। अगर ये लिमिट के ऊपर आपका टर्नओवर क्रॉस होता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। Except of that, some are business that regardless of turnover mandatory registration है जीएसटी का। That is interstate supplier। अगर सेलिंग अगर आप गुड सर्विस गुड सेल करते one state to another, then you have to mandatory register for GST. If e-commerce seller है selling via platform like Amazon and Flipkart, then GST registration is mandatory. Casual taxable person, temporary business at exhibitions, तो उसके लिए भी GST registration compulsory है. Non-resident taxable person and input service distributors. तो ये जो है उनके लिए रिगार्डलेस ऑफ टर्नओवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। देन जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है? List of documents required for GST registration is photograph of an applicant. If there is a partnership, no need of photograph. If there is a partnership, still need a photograph of all the partners and directors. If in case of company, then ID proof. ID proof of all the partners. Proprietor है तो proprietor, all the partners and the directors. PAN card of all the partners and directors and proprietor. Aadhaar card, and this is the list of the documents. And ये चार में से any two is required. And constitution documents. In case of proprietor, it's not compulsory, but for the name, trade name, we require this document. Shop act registration या फिर गुमास्ता, we call it गुमास्ता. तो वो required है. It's not compulsory, but if it is there, तो we can add it for trade name document. Then partnership form है, तो that is required partnership deed and in case of company, certificate of incorporation and LLP also. And company, in case of company, certificate of incorporation that is required. Then proof for principal place of business. If the place of the business is owned by the proprietor, then we require property tax paid receipt, electricity bill, sale deed or index. And all of these we need only two documents required compulsory है. And if it's not owned by the proprietor or a partner, then we need, if it is rented, then we need rent agreement and any two document of electricity bill, property tax receipt, saving or index. We have to upload two documents for this. And if it is not rented or owned, then if it is consent, then we need a consent letter and electricity bill proprietorship of
proprietor से proprietor property tax receipt or sale deed or index, any two documents of this. Then we require bank account of business. ये जो बैंक अकाउंट है वो एट द टाइम ऑफ इफ द प्रोप्राइटर और जीएसटी रजिस्टर जो करवाया है उनके पास एट दैट टाइम कोई बैंक अकाउंट नहीं है वो बिजनेस के लिए, दैट इज ओके. वी हैव टू ऐड बैंक अकाउंट डिटेल्स आफ्टर अप्लाइंग जीएसटी एप्लीकेशन एंड इफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन आने के बाद विद इन अ 30 day we have to add bank account. But when someone is coming for GST registration, then we have to हमें उनको बता देना है कि ये इस बैंक अकाउंट के लिए वो प्रोसेस कर दो, ताकि जब तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो तब तक बैंक अकाउंट आ जाए. तो विदिन अ 30 day ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन वी हैव टू ऐड बैंक अकाउंट. ठीक है. तो and in that case we did cancel check, one of the documents of cancel check, copy of bank statement or first page of bank passbook, and address proof of residence. हाँ, to add proprietor details we need property address proof of residence. So electricity bill, telephone bill और property tax receipt, one of that जिसमें से हम एड्रेस ऐड कर सके प्रोपराइटर का या फिर पार्टनर है या फिर डायरेक्टर्स है. डिजिटल सिग्नेचर इफ अवेलेबल, बट ये डिजिटल सिग्नेचर हम तभी अप्लाई कर पाएंगे आफ्टर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाए. In registration we cannot use digital signature. And then email ID and phone number. ये email ID and phone number जिस पे OTP जाएगा at the time of GST application also and after GST registration, GST number आ जाए तो after return filing के टाइम पे every time यही email ID and mobile number पे OTP जाएगा. तो हमको उनसे वही मोबाइल नंबर और OTP लेना है जिससे वो एवरी टाइम हमको रिटर्न फाइलिंग के टाइम वो कन्वीनियंट हो. देन HSN और सेट कोड ऑफ ट्रेडेबल गुड्स, वो जो भी सर्विस या फिर गुड्स में ट्रेड करने वाले हो मिनिमम उसके 5 HSN कोड चाहिए. 5 HSN या फिर सेट कोड जो जिसमें भी ट्रेड कर रहे हो वो रिक्वायर है. After collecting all the documents, we are having a mass input sheet in which we will fill all the data so that registration process can be easier. So there is some information जो हम पहले ही client से confirm कर लेंगे, that is yellow marked here. So any other documents we can add it from any other details we can add it from the documents given by the client. So we have to fill all the sheet here. ये URL भी दिया गया है. फर्स्ट देयर इज अ URL, ये जो है जहाँ पे हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट करना है. देयर इज अ पाथ आल्सो. तो we go to this site and then we have to register. तो capacity of applicant, first is capacity of applicant. तो we can drop down बोल दो. ओके, तो ये इंडिविजुअल है, पार्टनर है, तो वी कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर. स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऐड करना है. लीगल नेम ऑफ द बिजनेस दैट इज पैन कार्ड. पैन कार्ड पे जो नाम लिखा है वो हमको डायरेक्ट करना है. देन पैन नंबर, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड फ्रॉम द क्लाइंट. देन बिजनेस डिटेल, तो ट्रेड नेम, constitution of a business, is this a proprietorship or partnership or LLP. Then we have to add option for composition. If the client is applying for composition skill, then we have to tick mark yes here.
थोड़ा जूम करो, बड़ा करो। देन रीजन फॉर ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो उनके रीजंस है। तो वो उनका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रहा है, इसलिए रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, वॉल्यूंटरी ले रहे हैं। तो ऑप्शंस आर गिवन देयर ऑन जीएसटी साइट, वी हैव टू जस्ट सिलेक्ट रीजन टू obtain the GST registration. Then date of commencement of business. GST registration कौन सी डेट से लेना है, तो वो डेट इधर ऐड करनी है। डेट ऑन विच liability to arise, तो इफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हमने इधर सेलेक्ट किया है तो हमको उसकी डेट भी ऐड करनी है कि ये डेट के बाद हमारा टर्नओवर क्रॉस हो रहा था, दैट्स व्हाई वी हैव रजिस्टर। एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, कम ये जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके पास ऑलरेडी कोई रजिस्ट्रेशन हो तो उसकी भी डिटेल हमको ऐड करनी है। ये जो रजिस्ट्रेशन है वो हमको सिलेक्ट करना है। इफ देयर इज अ कंपनी तो हमारे पास कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होगा तो वो हमको ऐड कर देना है। वो से अप्रोप्रिएट चीज हमको इधर से सिलेक्ट करनी है, उधर से डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी ऐड करनी है एंड उसके रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है। तो होता है डिटेल ऑफ प्रमोटर एंड पार्टनर्स, तो एज पर पैन हमको ये जो प्रोपराइटर है या फिर पार्टनर है उनके नाम है डिपेंडेंट, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, रजिस्ट्रेशन डेजिग्नेशन, पैन नंबर, एड्रेस डिटेल ऐड करना है एंड देन वी हैव टू अपलोड अ फोटोग्राफ। ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो भी इधर हमको अपलोड करने हैं वो पर्टिकुलर साइज में होना चाहिए, वो साइज का लिस्ट इधर दिया गया है। इफ फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं तो वो 100 KB का ही होना चाहिए। इस तरह से जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसका लिस्ट भी है, ये साइज भी लिखी हुई है, वही साइज में हम डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। Then we have to add a detail of principal place of business. So first we add address, pin code, district, and then jurisdiction. तो jurisdiction ढूंढने के लिए ये जो साइट है उधर से हमको हम ढूंढ सकते हैं jurisdiction address wise. Then any two documents required of for principal place of business, nature of the possession of the premise, if own है तो भी हमको कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो हमने पहले बताया था, एंड प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसमें से एक प्रोपराइटरशिप है तो उनको ओनरशिप का डॉक्यूमेंट उनका ही है, प्रोपराइटर का ओन, तो हमको इधर नेचर ओन ओनरशिप डॉक्यूमेंट ऐड करना है। इफ रेंटेड है तो हमको रेंट एग्रीमेंट ऐड करना है एंड कंसेंट है तो कंसेंट लेटर ऐड करना है एंड प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मींस हमको उसके रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट वो सब ऐड करना है। एनी टू डॉक्यूमेंट्स वी हैव टू अटैच। देन वी हैव टू सिलेक्ट, यहाँ पे सिलेक्शन आएगा तो हमको उधर सिलेक्ट करना है नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी कैरिड आउट एट द अबव मेंशन प्लेस। ये जो प्लेस है वहां पे हम कौन सी सर्विस हम करेंगे, मतलब हम ट्रेडिंग करेंगे, सप्लायर ऑफ सर्विसेज या फिर बॉन्डेड वेयर हाउस है, वो प्लेस है वो क्या है, उधर कौन सी एक्टिविटी कैरी होगी वो है। बॉन्डेड वेयर हाउस है, एक्सपोर्ट है, ऑफिस ऑफिस सेल ऑफिस है, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, होलसेल बिजनेस कैरी करने वाले हैं उधर, या फिर रिटेल बिजनेस है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज है, लीजिंग बिजनेस है, जो भी है वो हमको सिलेक्ट करना है। वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल ऑल्सो।
फिर हमको इधर एडजेसेंट कोड और फिर सेट कोड ऐड करनी है जिस कमोडिटी में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। देन आधार नंबर ऐड करके, आधार नंबर एंड नेम एज पर आधार ऐड करके एक लिंक, इसे हम आगे प्रोसेस करेंगे तो एक लिंक जाएगा क्लाइंट के ईमेल नंबर पे, उधर से हम उनको अपना आधार ऑथेंटिकेट करना है। एंड वो लिंक आफ्टर फाइलिंग एप्लीकेशन जाएगा तो दे हैव टू कंप्लीट इट। एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की डिटेल्स ऐड करनी है तो डिस्ट्रीब्यूटर नेम एमजीवीसीएल पीजीवीसीएल जो भी है एंड कंज्यूमर नंबर ऐड करना है फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी। बैंक अकाउंट डिटेल अगर है तो आप ऐड कर दीजिए, इफ नहीं है तो जब भी बैंक का ये एप्लीकेशन हो जाएगा या फिर आफ्टर जब भी उनका बैंक का प्रोसेस हो जाता है अकाउंट नंबर आता है तब इधर ऐड कर देना है। वो हमको रजिस्ट्रेशन के 30 डेज में हमको इधर ऐड करना है। उसके लिए डॉक्यूमेंट्स ये बैंक पासबुक, ये इसके लिए भी डॉक्यूमेंट्स है कि बैंक पासबुक या फिर स्टेटमेंट चाहिए। चेक पॉइंट्स बिफोर फाइलिंग इंफॉर्मेशन सेट, तो ये जो हम ऐड कर रहे हैं नाम एंड ऑल, नाम है, फिर कोई भी पार्टनर का या फिर बिजनेस का नाम ऐड कर रहे हैं तो एक बार हम डेटाबेस में भी चेक कर लें इफ नाम डेटाबेस में एंड हम जो ऐड कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम होगा या फिर वो प्रॉब्लम होगा स्पेलिंग का मिस्टेक, तो ये जो एप्लीकेशन है सबमिशन के बाद जाती है वैलिडेशन में। इफ नाम में मिसमैच होगा तो वो वैलिडेट ही नहीं हो पाएगी, वो पहले वो करेक्शन के लिए जाएगी। तो मेक श्योर पहले आप वो टाइम डेटाबेस में चेक कर लेना, देन आप इनपुट शीट में भरे जिससे वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जब एप्लीकेशन करे तब भी वो वैलिडेशन में ले जाए एंड जल्दी प्रोसेस हो जाए। Then we have to check name and address in all documents. It should be same or linked. If अगर ये जो प्रॉपर्टी है ये जो प्रोपराइटर है इसका ये जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो प्लेस का एड्रेस है, इफ ओन है तो फिर उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स में सब जगह पे उसका सेम नाम होना चाहिए। जो भी हम 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं सब जगह पे उसी का नाम होना चाहिए। एड्रेस भी ऑल्सो उनको चेक करना है कि सब जगह पे सेम ही हो और वही हम ऐड करें इधर। इफ रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर रेंट एग्रीमेंट जिसके साथ हुआ है वो ओनर के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब भी हमको देखना है कि सारे डॉक्यूमेंट्स में वो ओनर के नाम है कि। एंड कंसेंट है तो सेम एज दैट कि कंसेंट लेटर में जिसने भी कंसेंट दिया है उसका ओनर, जो ओनर के डॉक्यूमेंट्स म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल तो सब जगह ओनरशिप के डॉक्यूमेंट में नाम सेम होना चाहिए। एंड कॉमन मिस्टेक तो है वैलिडेशन का, इफ पैन में प्रॉब्लम होगा नाम में तो वैलिडेशन एरर आएगा, तो हमको ये चेक करना है। इफ आ रहा है एरर देन वी हैव टू चेक नेम इन पैन डेटाबेस, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू करेक्ट इट एंड एप्लीकेशन हमको फिर से सबमिट कर देना है। ये लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जो भी हमको चाहिए रहेगी और अकॉर्डिंग टू उसकी साइज, तो ये हम शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे उसके साथ हम अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स भी कॉम्प्रेस करके रख लें, तो जब भी हम एप्लीकेशन करें तो उसके साथ में ही ये एक प्रिपरेशन का पार्ट है एप्लीकेशन की, तो ये भी हमको प्रिपेयर करना है और ये उसकी लिस्ट। थैंक यू।